سے آج اپنی رہنمائی کے لیے کچھ باتیں سیکھ سکیں۔ میرے عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری گائیڈنس کرتا ہے، خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، خدا کا کلام ہمیں حکمت بخشتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو حکمت سے امپاور کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے آپ کو حکمت سے بھر سکتے ہیں۔ خدا کے کلام مقدس میں سے ہم اس بات کو جانیں گے، خاص طور پہ ینگسٹر کے لیے، اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس بات کو جانیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ انہیں وزڈم سے بھرنا چاہتا ہے، نہ صرف جوانوں کو بلکہ بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، ہر ایک ایج کا جو انسان ہے وہ خدا کے کلام کے اوپر جب غور کرتا ہے تو خدا اسے حکمت سے معمور کر دیتا ہے، خدا اسے حکمت سے بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ سلیمان بادشاہ جو ہے، امثال کی کتاب میں، پروورب کی بک میں جو پہلی ورس ہے اس کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے، اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن داؤد کی مثال حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے، عقل مندی اور صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے، سادہ دلوں کو ہوشیاری، جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے، تاکہ دنا آدمی سن کر علم میں ترقی کرے اور فہیم آدمی درست مشورت تک پہنچے۔ یہ مقصد ہے اس بک کو لکھے جانے کا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کیا کرے جی؟ حکمت حاصل کرے، تربیت حاصل کرے، علم حاصل کرے، مشورت کے لیے۔ یہ خدا کا کلام جو سلیمان بادشاہ نے خدا کے روح کی ہدایت سے لکھا، اور وہ بہت ساری باتیں جو ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے، لکھتا ہے، تاکہ نوجوان جو ہیں اور بچے جو ہیں، بوڑھے جو ہیں، وہ ان سے سبق حاصل کریں اور درست مشورت تک پہنچے۔ آج میں آپ کے سامنے بڑی خوبصورت جو ہے وہ چونٹی، جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے، اینٹ انگلش میں کہتے ہیں اسے، اینٹ، اور چونٹی جو سب سے جو ہے وہ بالکل ایک انسیکٹ ہے، چھوٹا سا کیڑا ہے، بالکل جو ہے وہ کمزور مخلوق ہے، لیکن خدا نے اس کے اندر بہت زبردست قسم کی حکمت رکھی ہے۔ خدا نے اس کے اندر بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ اس کو جب بنایا ہے تو اس کے اندر عقل ہے، اس کو فہم دیا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا کام کر سکتی ہے۔ اور یہاں پر ہمیں سلیمان بادشاہ جو ہے وہ ان تمام لوگوں کو جو زندگی کے اندر سست روی سے چلتے ہیں، جو وقت کو غنیمت نہیں جانتے، جو وقت کی قدر نہیں کرتے، ٹائم کی ویلیو نہیں رکھتے، ان کو تربیت کرتے ہوئے یہ چند باتیں جو ہے وہ شیئر کرتا ہے، اور اگزامپل اس میں جو ہے وہ لیتا ہے چونٹی کی، کہ وہ کہتا ہے کہ اے کاہل، کاہل کا مطلب ہے جو انسان سست ہے، اپنے کام کرنے میں سست ہے، اپنی ذمہ داریوں میں سست ہے، اس کو وہ اس بات کے لیے آگاہ کرتا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے یہ پڑھنا چاہتا ہوں، امثال 6 باب کے اندر اس کی 6 آیت سے لے کر 11ویں آیت میں خدا کے کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اے کاہل، چونٹی کے پاس جا اور اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند بن، جو باوجود اس کا نہ کوئی سردار، نہ ناظر، نہ حاکم ہے، گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے۔ اے کاہل، تو کب تک پڑا رہے گا؟ تو نیند سے کب جاگ اٹھے گا؟ تھوڑی سی نیند ایک اور تھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ، اسی طرح تیری مفلسی رہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی۔ میرے عزیزو، یہاں پر خدا کا بندہ سلیمان ان لوگوں کو مخاطب کرتا ہے جو لوگ اپنی ذمہ داریوں میں سست ہیں، جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، جو لوگ اس بات کو اگنور کرتے ہیں، جو لوگ سست روی سے چلتے ہیں، جن کی رفتار سست ہے، جن کو کام کے وقت جب کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کرتے، بلکہ وہ سوتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، وہ چیزوں کی وہ ویلیو، وہ قدر نہیں جانتے، ان کو اس بات کے لیے وہ آگاہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اے کاہل، چونٹی کے پاس جا۔ آپ سب جانتے ہیں
کہ چونٹی بالکل چھوٹا سا، ایک بہت ہی چھوٹا سا انسیکٹ ہے، چھوٹا سا کیڑا ہے، بالکل سمال ہے، لیکن اس کے اندر یہ وزڈم خدا نے رکھی ہے، اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ خدا نے اسے دانش مندی بخشی ہے، اور وہ اپنے وقت کو غنیمت جانتی ہے، اپنے وقت کی قدر کرتی ہے، ویلیو کرتی ہے، اور ہارڈ ورکر کے طور پہ جو ہے وہ اس کو جانا جاتا ہے، سخت محنت کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر میں چند اس کی خوبیاں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں نے رائٹ ڈاؤن کی ہے چند اس کی کوالٹیز جو ہیں۔ نمبر 1، اس کی ولنگنس، کہ وہ ایگری ہے اپنے کام کرنے کے لیے، ہر وقت جو ہے وہ اس کا مائنڈ اس بات کے لیے ریڈی ہے کہ مجھے کام کرنا ہے، مجھے محنت کرنی ہے، مجھے ہارڈ ورک کرنا ہے، مجھے اپنے لیے خوراک جمع کرنی ہے، مجھے مہیا کرنی ہے اپنے لیے خوراک، اس لیے کیونکہ یہ ہارڈ ورکر ہے۔ خدا نے اس کے اندر ایک ایسی جو ہے وہ اس ایسی خوبی رکھی ہے، ایسی کوالٹی پیدا کی ہے کہ یہ اپنے وقت کو جو ہے وہ بڑے بہتر طور پہ یوٹیلائز کرتی ہے، بہت بہتر طور پہ استعمال کرتی ہے، اور اس کو اپنے لیے افیکٹو اور پروڈکٹیو بناتی ہے۔ یہ ہارڈ ورک کرتی ہے، سخت محنت کرتی ہے۔ آپ دیکھیں چاہے وہ گرمی ہو یا سردی ہو، یا اپنا کام کرتی ہے، رات دن آپ دیکھیں، رات میں بھی آپ کبھی اٹھ کے دیکھ لیں تو آپ کے گھر میں چونٹیوں کی لائن لگی ہوگی، اور وہ اپنا جو ہے وہ خوراک کو لے کے اپنے جو گھر ہے اس کا گھونسلہ جہاں پر وہ رہتی ہے، جہاں پر وہ جو سوراخ ہے جہاں پر اس نے اپنا جو ہے وہ اپنا گھر بنایا، وہاں پر وہ لے کے جاری ہوتی ہے۔ یہ کنٹینیوسلی عمل رہتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے میرے عزیزوں۔ ہم دیکھتے ہیں 8ویں آیت میں لکھا ہے، گرمی کے موسم میں وہ اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش کو جمع کرتی ہے۔ گرمی آپ دیکھیں کہ سخت گرمی ہے، لیکن پھر بھی وہ ریسٹ نہیں کر رہی، بلکہ کیا کر رہی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ کام کرنے کا وقت ہے، یہ خوراک جمع کرنے کا وقت ہے، یہ محنت کرنے کا وقت ہے، اور وہ محنت کر رہی ہے، اور وہ جا کے خوراک اپنے لیے جمع کر رہی ہے، وہ سخت محنت کر رہی ہے، گرمی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی محنت کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا نوجوان، آج کا مسیحی اپنے آپ کو دیکھے کہ کہاں وہ کھڑا ہے۔ کیا وہ ولنگ ہے اپنے حالات کو بدلنے کے لیے؟ کیا وہ ولنگ ہے کہ وہ سخت محنت کرے اور معاشرے میں اپنا مقام بنائے، معاشرے میں اپنا نام بنائے؟ کیا وہ محنت کرنے کے لیے تیار ہے؟ جو لوگ خدمت میں ہیں، کیا وہ خدا کے لیے اسی طرح ہارڈ ورک کر رہے ہیں؟ کیا وہ محنت کر رہے ہیں کہ روحوں کو جیت کے خداوند کی حضوری میں لائیں، یا صرف اپنے لیے کام کر رہے ہیں، یا صرف اپنے ذات تک کی حد تک کام کر رہے ہیں؟ میرے عزیزوں، یہاں پر ہمیں یہ اس لیسن کو ملتا ہے کہ سخت محنت جو ہے وہ کیا کرتی ہے، انسان کے لیے خوشحالی کو لے آتی ہے۔ سخت محنت جو ہے وہ کیا کرتی ہے، انسان کو آگے لے کے جاتی ہے۔ جب ہم امثال کا 10واں باب 4 اور 5 آیت پڑھیں تو ہمیں وہاں پہ لکھا ملتا ہے کہ جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے، نکالے میرے ساتھ ایک اور حوالہ آپ خدا کے کلام میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ 4 اور 5 آیت میں لکھا ہے، جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے، لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے۔ جو ہارڈ ورکر ہے وہ دولت مند بن جاتا ہے، جو محنت کرتا ہے وہ خوشحال ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جتنے بھی ہمارے دوست اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، جتنے بہن بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو کام کے وقت کام نہیں کر رہے، میں ان کو اس بات کے لیے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں کو ڈھیلے نہ بنائیں، اپنے گھٹنوں کو سست نہ کریں، بلکہ کیا کریں، اس بات کے لیے ولنگ ہو جائیں۔ اس چونٹی کی اگزامپل لیں کہ کس طرح یہ ہارڈ ورک کرتی ہے، یہ ہر وقت ایگری رہتی ہے، تیار رہتی ہے کہ مجھے محنت کرنی ہے۔ سوری ٹو سے، میں ان نوجوانوں کے لیے بڑا
जो है वो दिल में दुख होता है, जो मसीही कौम को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन गलियों में चौराहों में खड़े होकर अपना वक्त गुजारते हैं और अपने वक्त को जाया कर देते हैं, वो उसकी वैल्यू नहीं करते, उस वक्त को जो है वो गनीमत नहीं जानते। कलाम में लिखा है वक्त को गनीमत जानो, ये खुदा का गिफ्ट है आपके लिए। जितने बहन भाई सुन रहे हैं, मैं आप सबसे मुखातब हूं कि वक्त जो है खुदा ने टाइम जो हमें दिया है, ये एक तोहफा है और ये एक खूबसूरत गिफ्ट है जो खुदा की तरफ से मिला है। मेरे अजीजों, अगर हम इसे इसी तरह, कोई भी बहन भाई जो सुस्ती रवि से काम कर रहे हैं, अगर वो इसी तरह इसको जाया कर देगा तो वक्त दोबारा कभी पलट नहीं सकता। वक्त के लिए कहा जाता है टाइम इज अ मनी, यही वो वक्त है जो आपकी जिंदगी को बेहतर कर सकता है, आपके हालात को माली तौर पे चेंज कर सकता है। और टाइम के ताल्लुक से ये बात कही जाती है कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता है। तो आज नौजवान नस्ल, खासतौर पे नौजवान गलियों मोहल्लों में बैठते हैं और अपने वक्त को जाया कर देते हैं। इसलिए खुदा का कलाम ये कहता है कि जो गर्मी में जमा करता है वो दना बेटा है, पर वो बेटा जो द्रोह के वक्त सोता रहता है शर्म का बायस है। यानी जो फसल कटने के वक्त सोता है, जो फसल कटने के वक्त, क्योंकि अब ये वक्त है जब काम करने का वक्त है, अब ये वक्त है जब अपने लिए जमा करने का वक्त है। हम एक और चीज चुंटी की जिंदगी से देखते हैं कि वो क्या करती है, सेव करती है अपने लिए, कलेक्ट करती है अपने लिए, ताकि मुश्किल वक्त में उसके काम आ सके, ताकि उस वक्त उसके काम आ सके जब विंटर है, जब झाड़ा है, जब हर तरफ बारिश हो सकती है, जब फसल जो है वो उस तरह से पकी हुई नहीं मिल सकती, वो उन हालात के लिए, यानी मुश्किल हालात के लिए जमा करती है। मेरे अजीजों, वक्त हमेशा गुजर जाता है। आज खुदा ने तंदुरुस्ती और सेहत दी है, आज आप मेहनत करें, आज आप उठें, ताकि आपके आने वाले वक्त में आपकी रहनुमाई हो सके, ताकि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हम देखते हैं अक्सर कि लोग मेहनत नहीं करते, पैसा पहले जमा नहीं करते, लेकिन अपने अखराजात इतने बड़े, शादियां हों उधार, कर्ज लेते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी, ज्यादातर लोग कर्ज से डूबे हुए होते हैं, वो गैर कौमों से कर्ज लेते हैं और बाद में उनको उसका नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वो कर्ज पे नहीं कर सकते। जो वो ले लेते हैं वो अपनी बसात से बढ़ के ले लेते हैं, अपने, अब वो ये जानते नहीं कि हम कितना ले रहे, क्योंकि वो उसके मुताबिक ना तो हार्ड वर्क करते हैं, ना इस बात को जानते हैं। लेकिन क्या करते हैं, जो कुछ उनके पास इवन जो जमा होता है, चिंटी क्या करती है, बड़ी अतदाल पसंदी से चलती है। जो कुछ वो जमा करती है वो सारा एक दिन खत्म नहीं कर लेती, वो सारी सैलरी एक ही महीने में खत्म नहीं करती, बल्कि क्या करती है, अपने लिए रखती है। ये सबक है उन लोगों के लिए जो हर महीने अपने लिए कुछ सेव नहीं करते। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एट द एंड ऑफ मंथ उनके पास कुछ नहीं होता और वो लोगों से मांग रहे होते हैं उधार। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें जिस्मानी तौर पे भी अक्लमंदी बख्शता है। हमें ये कहता है कि हमें हर काम को जो क्या करना है, बैलेंस तरीके से करना है, हमें डिसिप्लिन कायम करना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी काम की ज्यादती जो है वो अच्छी नहीं होती है। बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में कहते हैं खुदा मुहैया करेगा। मेरे अजीजों, खुदा ने आपको अकल बख्शी है, फहम बख्शा है। आप कलाम में से पढ़ सकते हैं, आप इस बात को जान सकते हैं कि हमें हर चीज जो है वो इस तरह से हमें बिल्कुल भी जाया नहीं कर देनी, बल्कि उसको सेव करके रखना, ताकि मुश्किल वक्त में काम आ सके, ताकि मुश्किल वक्त। आज भी ऐसा नौजवान, अगर आप देख रहे हैं मुझे, नौजवान जितने भी खुदा के कलाम के ताल्लुक से, अब मैं रूहानी बात करने लगा हूं, खुदा के कलाम के ताल्लुक से आप देख लें कि वो खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, खुदा के कलाम को जखीरा नहीं कर रहे अपनी जिंदगी के अंदर। मेरे अजीजों, कल को जब शादी हो जाती है, जब फैमिली हो जाती है, तो उस वक्त शायद आपको इतना टाइम ना मिले कि आप उस वक्त उस तरह खुदा के साथ वक्त गुजार सके। लेकिन आज अगर आपके पास टाइम है तो खुदा के कलाम को पढ़िए, खुदा के साथ वक्त गुजारिए, अपना दिल लगाइए खुदा के साथ, फिर देखिए खुदा आपको किस तरह आगे बढ़ाता है। और ये कलाम आज जो आपके पास है, जब कलाम इस दुनिया से उठा लिया जाएगा तो आपके अंदर खुदा का कलाम मौजूद होगा। आपने जो जखीरा किया होगा वो उस वक्त के लिए, उस मुश्किल वक्त में आपकी रहनुमाई करेगा, आपके बच्चों की। आज जो कुछ आपके अंदर है वही आप अपने बच्चों में ट्रांसफर करेंगे। अगर खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में है, अगर खुदा से मोहब्बत आपकी जिंदगी के अंदर है, अगर पाकीज़गी का रूह आपकी जिंदगी के अंदर है, अगर
अगर मेहनत आपकी जिंदगी के अंदर है, हार्ड वर्क आपकी जिंदगी के अंदर है, वही चीजें आप अपने बच्चों में ट्रांसफर करेंगे। मेरे अजीजों, मैं उन लोगों के लिए कई दफा सोचता हूं जो कौम के बुजुर्ग हैं। मैंने पाकिस्तान में देखा है वो लोग गलियों में, मोहल्लों में बैठकर ताश खेलते हैं, जो उनका वक्त किसी और काम में बेहतर तौर पे सर्व हो सकता है, वो प्रोडक्टिवली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा के हजूर जाके अपने खानदान के लिए दुआएं कर सकते हैं, खुदा के हजूर अपनी कौम के लिए रो सकते हैं, क्राई कर सकते हैं कि खुदावंद मेरी कौम के हालात बदले। लेकिन क्या करते हैं, शर्टें उतार के गलियों में बैठकर ताश खेल रहे होते हैं, अपना जो कीमती टाइम है जो खुदा ने उनको दिया है वहां पर बैठ के। तो मेरे अजीजों, अगर किसी कौम के बुजुर्ग जिनको अक्लमंद समझा जाता है, जिनको सबसे ज्यादा अक्लमंद समझा जाता है, अगर वो इस तरह टाइम को जाया करते हैं तो बाकियों का आप खुद अंदाजा कर लें कि क्यों हमारी नौजवान नस्ल पीछे है, क्यों अपना वक्त जो है वो गलियों और मोहल्लों में गुजार देते हैं, क्यों सो के अपना वक्त गुजारते हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 2 बजे से पहले उठना पसंद नहीं करते, उनके पेरेंट्स गालियां देते हैं, उनको मतलब बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो नहीं काम करते। यानी दिन आधा गुजर चुका होता है और उस वक्त वो उठते हैं। आप इमेजिन करें कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है कि शागिर्द जो है वो क्या करता है। यसाया नबी में के सहीफा में लिखा है कि वो मुझे हर सुबह उठाता है और मेरा कान लगाता है ताकि मैं शागिर्द की तरह सुनूं। शागिर्द का काम है सुबह उठे, क्योंकि यही आपके लिए जरूरी है कि हर दिन का आगाज खुदा के नाम से किया जाए। हार्ड वर्क करने से पहले आप खुदा की हजूरी से होके जाएं, क्योंकि खुदा जो है वो आपकी राहों को हमवार कर देगा। मेरे अजीजों, ये हम देखते हैं कि ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि टाइम को किस तरह वो मैनेज करती हैं। चींटियां अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हैं। जो वक्त उनके काम का है उस वक्त वो काम करती हैं, उस वक्त वो सोती नहीं है, उस वक्त वो पार्टियों में नहीं जाती, उस वक्त वो यैशी नहीं करते। जो वक्त पढ़ने का, नौजवान नस्ल के लिए खास तौर पे जो लड़के लड़कियां बहनें भाई पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो वक्त स्टडी का है उस वक्त स्टडी कीजिए। उस वक्त यारों दोस्तों के साथ जो है वो पार्टियों में मत जाएं, यारों दोस्तों के साथ शादियों एंजॉय मत करें। आप जा सकते हैं जहां पे मतलब जरूरी है, लेकिन हर जगह पे जाना जरूरी नहीं है। आप इस टाइम को अपने लिए अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए। मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये है कि टाइम को वैल्यू दीजिए, टाइम की कदर कीजिए। वाइज की किताब जब हम पढ़ते तो खुदा ने हर चीज का टाइम मुकर्रर किया है। रोने का एक टाइम है, हंसने का एक टाइम है, शादी ब्याह करने का एक टाइम है। मेरे अजीजों, हर चीज का एक वक्त है, इसलिए वक्त की कदर कीजिए। क्योंकि यहां हम देख रहे हैं चिंटी क्या करती है, मौसम गर्म है लेकिन वो वक्त को जाया नहीं कर रही, बल्कि अपने घर के लिए मेहनत कर रही, अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही, खुराक को जमा कर रही है। और यही चीज उसके अंदर खुदा ने क्या की है, फिट की है। और जब ये चीज आपके अंदर होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी नस्ल में जाएगी, आपके बच्चों में जाएगी, आपकी नस्लें जो है वो संवर जाएंगी। आज हम क्यों इतना ज्यादा इस बात पे वावेला करते हैं कि पाकिस्तानी कौम क्रिश्चियन जो है वो उसकी हालत क्यों नहीं बदल रही, क्यों नौजवान नस्ल जो है वो उस तरह से तरक्की नहीं कर रहे, क्यों वो उनकी नजर, उनका कोई विजन नहीं है। भाई देखिए, विजन इसका देखे, इसको पता है गर्मी है तो मैंने काम करना है, सर्दी होगी जाड़ा होगा तो हो सकता है मेरे पास ऐसे हालात मयसर ना हो, लेकिन मुझे अभी उठना है और अभी काम करना है। तो मेरे अजीजों, जो मौका मिले, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, उसको जाया मत करें। क्योंकि अगर आप अपॉर्चुनिटीज खो देंगे अपनी जिंदगी में तो फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप अपनी अपॉर्चुनिटी लूज करेंगे तो आपकी तरक्की रुक जाएगी। यहां पर हमें ये सारी चीजें इसकी जिंदगी के अंदर नजर आती हैं। फिर ये हेल्पर है बहुत ज्यादा। अगर एक चिंटी उसकी खुराक बड़ी है और वो उठा नहीं सकती, हैवी है, तो दूसरी उसके साथ मिलकर उसकी हेल्प करती है ताकि वो क्या करे, उसके जो है उसके घर तक लेके जा सके। तो हमें यहां से सबक मिलता है, वो यूनिटी में रहती हैं, वो कम्युनिटी में रहती हैं, वो डिसिप्लिन मेंटेन करती हैं। देखें, वो लाइन बनाकर चलती, बावजूद इसके कि उनका कोई हाकम नहीं, उनके ऊपर कोई लीडर नहीं है, उनके ऊपर कोई हुक्म चलाने वाला नहीं है, कोई डंडा लेके नहीं खड़ा। और हमारे यहाँ क्या है, जब तक डंडे वाला सर पे खड़ा ना हो कोई इंसान काम नहीं करना चाहता, कोई इंसान उस काम को आगे लेके जाना नहीं चाहता। यहां तक कि लोग खुदा की हजूरी में उस वक्त आते जब खुदा उनको एक दफा झटका देता है, जब खुदा कोई उनके ऊपर आजमाइश लाता है, फिर वो भागते हैं कि चलो अब दुआ करवानी है, चलो अब कलाम पढ़ ले, चलो अब ये कर ले। उस वक्त वो हिलते हैं। ये किस बात को जाहिर करता है?
इस बात को जाहिर करता है कि वो सुस्त हैं। इस बात को सॉरी टू से कि क्रिश्चियन वाकई ही सुस्त हैं। ये एक ही बुक इन्हें मिली है पढ़ने के लिए और इसको भी नहीं पढ़ते। बहुत सारे लोग हैं उनकी उम्र 60 साल होगी, बाइबल एक दफा भी नहीं पढ़ी होगी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि सुस्त रवि से ना चले। खुदा के कलाम में लिखा है सुस्त घुटनों से खुदा को नफरत है। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं आपकी कौम तरक्की करे तो अपने घुटनों को मजबूत कीजिए, इन घुटनों पे जाइए और दुआ कीजिए अपने घर के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका खानदान बीमारियों से आजाद हो, आपका खानदान इब्लीस के हाथ से आजाद हो, तो अपने घुटनों पे जाइए, मेहनत कीजिए। बगैर मेहनत किए आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें इस छोटे से इंसेक्ट की एग्जांपल दे के समझाया जा रहा है कि भाई इसकी रवशों को देखो, ये किस तरह काम करती है, कौन सी खूबियां इसके अंदर खुदा ने रखी हैं। ये ओबीडियंस करती है, याद रखे फर्मा बरदारी इसके अंदर मौजूद है। देखे कि एक दूसरे के साथ खुद ब खुद चल रही है। और फिर ये सेल्फ मोटिवेटेड है। सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब ये है कि इसको पता है मुझे क्या करना है, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई चुंटी आज तुझे इधर जाना है, कल तुझे यहां जाना है, कल तुझे ये करना है। नो, she knows that how I have to work. She understand that. जब हम इमसाल के 30वें बाब की 25वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें मिलता है कि ये वो मखलूक है जिसका कोई भी सरदार नहीं है। 30वें बाब की 25वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। चिंटियां कमजोर मखलूक हैं तो भी गर्मी में अपने लिए खुराक जमा करती हैं। और यहाँ पर 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि 7वीं आयत में, बावजूद इसके कि इनका कोई भी सरदार या नाज़म या हाकम नहीं है, इनको खुद पता है कि हमें क्या करना है। गर्मी में खुराक जमा करनी है, किस वक्त जाना है, किस वक्त उठना है, किस वक्त जागना है, ये सारा काम इनका है। हमारे यहाँ माँ बाप जोर लगा लेते, बेटा उठ जा, बेटी उठ जा, कोई भी नहीं उठता, कोई सुनता ही नहीं बात। मेरे अजीजों, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाइए, जिसको कहते हैं ना प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब है आपको पता हो पहले से कि मुझे क्या करना है। ठीक है, अगर आप प्रोएक्टिव हो जाएंगे तो मेरे अजीजों आप तरक्की कर पाएंगे। बहन भाई जो नौजवान मुझे सुन रहे हैं, अगर आप प्रोएक्टिव हैं, प्रो लर्नर हैं, आप देखें अपनी जिंदगी के अंदर कैसे खुदा आपको बहाली की तरफ लेके जाता है। आप अगर हार्ड वर्क करना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, तो आप जिंदगी में शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि खुदा मेहनती के हाथों, कहता है मैं तेरी हाथ की कमाई में बरकत दूंगा, तेरी मेहनत जो तू करेगा मैं उसमें बरकत डालूंगा। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें कि मेहनत के बगैर कुछ भी हमें हासिल नहीं होने वाला। इसलिए आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएं कि हमें खुद करना है, हमें अपनी हालत बदलनी, अपनी कौम की हालत बदलनी, अपने लोगों की हालत बदलनी। खादमों के लिए भी कहना चाहूंगा, आपको अपने लोगों के लिए रखनों में खड़े होना, आपको उनके लिए दुआ करनी है, आपको अपनी कौम के लिए आंसू बहाने हैं, आपको अपनी कौम के लिए जो लोग नजात याफ्ता नहीं हैं, जो लोग अभी तक खुदा से दूर हैं, उनके लिए खड़े होना है, रूहों को मांगना है। ये बोझ आपको रखना है, ये मेहनत है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है जागते रहो। लिखा है कि खुदा वो मालिक कितना खुश होता है जिसका जब वो आए तो अपने नौकर को जागता हुआ पाए, सोया हुआ ना पाए, बल्कि ये इस बात को जाहिर करता है कि ही इज वर्किंग एक्टिवली। वो एक्टिव है, वो अपने काम के ऊपर जांफशानी के साथ मेहनत कर रहा है, इसलिए वो जाग रहा है। बताना चाहूंगा कि चींटियां जो हैं वो बहुत जबरदस्त किस्म की डिसीजन मेकर होती हैं, फैसला लेने वाली बहुत जबरदस्त होती हैं। वो जानती हैं किस टाइम उठूंगी, किस टाइम पे काम शुरू करूंगी, कब वापस आऊंगी, कब मुझे ब्रेक लेना है, कब मुझे स्टार्ट करना है, ये उनका डिसीजन होता है। तो मेरे अजीजों, कौम की हालत तब बदलती है अगर सही डिसीजन लिए जाएं, घर की हालत तब बदलती है अगर सही डिसीजन लिए जाएं, आपकी रूहानी हालत तब बदलेगी अगर आप सही डिसीजन लेंगे, क्योंकि डिसीजन आपके जो हैं वो आपकी जिंदगी को बदलते हैं, आपकी चॉइसेस आपकी जिंदगी को बदलते हैं। हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल इब्लीस के हाथों उस वक्त देते हैं जब हमारे डिसीजन रॉन्ग हो जाते हैं, जब हमारी चॉइसेस रॉन्ग होती हैं, हम इब्लीस को मौका दे देते हैं। और कलाम हमें बार बार कहता है इब्लीस को मौका
ना दो, लेकिन हम अपने डिसीजंस के साथ उसको मौका दे देते हैं। हम उसको कंट्रोल देते हैं अपने बदन का, अपनी सोचों के, अपने मुंह के जरिए, अपने कामों के जरिए, अपने रिलेशनशिप के जरिए ऐसे लोगों के साथ रिश्ते जोड़ लेते हैं। खासतौर पे नौजवान नस्ल के लिए, उन बहनों के लिए कहना चाहूंगा जो गैर कौमों में अपने रिश्ते जोड़ लेती हैं। आपके डिसीजन आपकी जिंदगी को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके चले जाते हैं, क्योंकि आपके डिसीजन जो हैं वो आपको जमीन से आसमान पे ले जाते हैं। एक सही डिसीजन आपका आपकी जिंदगी को संवार सकता है। जिन लोगों ने आज तक खुदा को अपना आप नहीं दिया, मैं कहूंगा कि आज एक डिसीजन बनाएं कि अपना आप यीशु को दे दें, यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लें, और आपकी जिंदगी, आपकी अब्दियत जो है, आपका जो आप एटर्नल लाइफ जो है, उसको आप अपनी संवार लेंगे आज, अगर आप एक डिसीजन सही ले लेते हैं। मेरे अजीजों, अक्सर हमारे घरों में डिसीजन गलत होते हैं, और डिसीजन गलत होने की वजह से, अगर शादी है तो इतना कर्जा ले लेना जिसको कई साल तक नहीं उतार सकते, बड़ा दिखाने के लिए, मुकाबला करने के लिए कि लोगों को पता चले हमारी पहली शादी है, ये है वो है, इस तरह के एक्सक्यूज देकर इतना ज्यादा लोन ले लेते हैं, इतना कर्जा ले लेते हैं कि बाद में पे नहीं कर सकते, बाद में परेशानियां बन जाती। डिसीजंस, आपके डिसीजन डिसाइड करते हैं कि आप कैसी जिंदगी गुजारें, आपका फ्यूचर कैसा हो सकता है। इसलिए अपने डिसीजंस को देखें मेरे अजीजों। इब्लीस तब तक आपकी पावर, आपके ऊपर कंट्रोल नहीं लेगा जब तक आपके डिसीजन जो है वो ना हो। इसलिए मैं तमाम बहन भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि वॉच आउट कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं। आप सोचें आपकी क्या चॉइस है। आप डिसाइड करते, नशा करने के लिए आप डिसाइड करते कि मुझे इसकी, मेरी चॉइस है कि मैंने सिगरेट पीने हैं, मेरी चॉइस है मैंने शराब पीनी है, मेरी चॉइस है मैंने ऐसे लोगों के साथ रहना है, ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक कायम करने हैं जिनकी रवशें दुरुस्त नहीं है। कलाम में लिखा है फर्स्ट ज़बूर में, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पे नहीं चलता। दैट्स योर डिसीजन कि आप किसकी सलाह पे चल रहे हैं, किस से मशवरा ले रहे हैं, किस गैदरिंग में बैठ रहे हैं, वो आपकी जिंदगी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं और क्या आप कर रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, अपने आप को खुदावंद की हजूरी में रखें, अपने आप को कलाम से भरें। आज वक्त है आपके पास, खुदा ने आपको शॉर्ट टाइम दिया है, और टाइम खुदा का गिफ्ट है, इसको जाया मत करें, इसको, इन बातों को इग्नोर मत करें, और इनको अपनी जिंदगी के अंदर अमल पैरा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली के हालात बदलें, आपकी अपनी जिंदगी बदले, आपकी कम्युनिटी डेवलप करे, आपके लोग आगे बढ़े, ये तभी हो पाएगा जब आप अपने सही फैसले करेंगे। ये तभी होगा जब आप हार्ड वर्कर बनेंगे, जब आप मेहनत करेंगे। मैं देखता हूं कुछ कौमें ऐसी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जाके मोहल्लों में काम करें, अगर वो पढ़े लिखे नहीं तो मैं उनको देखता हूं कि वो कई जगह पे काम कर रहे होते। तो मेरे अजीजों, हमारे क्रिश्चियन बहन भाई क्यों नहीं काम कर सकते? इस मुल्क में जिसमें हम रहते हैं, हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियां क्या करती हैं, जैसे साथ साथ वो स्टडी कर रहे हैं, साथ साथ पार्ट टाइम काम भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा रवाज बिल्कुल नहीं है। बच्चे मेहनत नहीं करते, इवन के बच्चों के बच्चे हो जाते हैं तो माँ बाप उनको पाल रहे होते हैं, माँ बाप उनका खर्चा उठा रहे होते हैं, माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं लेकिन फिर भी उनका खर्चा माँ बाप उठा रहे हैं। क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं लोग? क्योंकि फहम नहीं है, क्योंकि विजडम नहीं है। और आज हमें नसीहत की जाती है यहां से कि चुंटी के पास जा, उसकी रवशों को देख और अक्लमंद बन। नसीहत ले इससे। खुदा का बंदा सुलेमान बादशाह, जिसे हिकमत का बादशाह भी कहा जाता है, वो ये बात कहता है कि चुंटी के पास जाओ। वो कहता है इनसे नसीहत लो, ये किस तरह काम करती हैं, किस तरह मेहनत करती हैं, किस तरह अपने वक्त की वैल्यू देती हैं, किस तरह अपने टाइम को जो है वो खूबसूरती से यूटिलाइज करती हैं, प्रोडक्टिव वे में, अफेक्टिव वे में। तभी आप मेरे अजीजों कामयाब हो पाएंगे, रूहानी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी। अगर आप काम को मेहनत नहीं करना जानते तो मेहनत जो है उसके बगैर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। सुस्त आदमी जो है वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता। जो सुस्त रवि से चलता है वो हमेशा पीछे रह जाता है, दूसरे आगे निकल जाते हैं, लेकिन जो सुस्त है वो पीछे रह जाएगा। ये चंद बातें जो आज हमने सीखी हैं मेरे अजीजों, मेरा ईमान है कि आपकी जिंदगी के लिए बाइस से बरकत होंगी।
खुदावंद आप सबको बरकत दे, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें यही हुक्म देता है कि जागते रहो। मुकाशफा के 16वें बाब के अंदर उसकी 15वीं आयत है, मैं पढ़ना चाहता हूं आप सबके लिए। ये यीशु मसीह का मुकाशफा है जिसमें ये बात लिखी गई और कहा गया, देखो मैं चोर की तरह आता हूं, मुबारक है वो जो जागता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुबारक है वो जो जागता है। इसका मतलब ये है कि जो अलर्ट है, जो एक्टिव है, जो काम कर रहा है, वो इंसान मुबारक है। लेकिन जो सोया हुआ है, लेकिन जो इग्नोरेंस में है, जो इन बातों को इग्नोर कर रहा है, जो मेहनत नहीं कर रहा, वो इंसान मुबारक नहीं है। मुबारक वो है जो जाग रहा है, मुबारक वो है जो एक्टिव है, मुबारक वो है जो हार्ड वर्क कर रहा है, क्योंकि खुदावंद आपके हाथों के कामों में बरकत देगा। खुदावंद आपकी जिंदगी को बरकत बनाएगा। कई दफा पूछते हैं कि भाई जी क्या काम करते हैं? जी मेरा बड़ा भाई जो है वो सऊदी अरब में है, मेरी बड़ी बाजी जो है वो नर्स है, मेरा फलाना जो है वो अमेरिका में है। यानी एक्चुअली वो क्या कर रहे होते हैं? उस सवाल से भाग रहे होते हैं, उस बात को इग्नोर कर रहे होते हैं कि आपकी जिंदगी कहां पर खड़ी है। आप अपने बारे में बताइए कि आपकी जिंदगी में क्या है। मेरे अजीजों, किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय आप अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करें। आपके अंदर जो है अपनी सेल्फ जो है वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मांगने वाले ना बने, बल्कि खुदावंद कहता है देने वाले बने, दिया करें, देने वाले बने। देने वाले मुबारक हैं, खुदावंद ने कहा है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने आप को चेक कर लें, देख लें। नौजवान खास तौर पे देखें कि आपको किस तरह अपनी जिंदगी को गुजारना है। और मैं चाहूंगा जितने बहन भाई आज सुन रहे हैं, छोटी सी एडवाइस है, वो ये है कि इमसाल की किताब जरूर पढ़ें और इसके ऊपर अमल भी करें, ताकि आपकी जिंदगी में बरकत हो सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद की मस्सा, खुदावंद की हजूरी हमेशा आपके साथ रहे। उसी के जिंदा और जलाली नाम की ताजीम करते हैं, सारी बातों में उसी के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, सारी ग्लोरी उसी को देते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं खुदा का कि आज उसने ये मौका दिया है कि हम खुदा के कलाम की जिंदा सच्चाइयों में से आज अपनी रहनुमाई के लिए कुछ बातें सीख सके। मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो हमारी गाइडेंस करता है, खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, खुदा का कलाम हमें हिकमत बख्शता है। आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह अपने आप को हिकमत से एम्पावर कर सकते हैं, किस तरह हम अपने आप को हिकमत से भर सकते हैं। खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम इस बात को जानेंगे, खास तौर पे यंगस्टर के लिए। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वो इस बात को जाने कि खुदा का कलाम जो है वो उन्हें विजडम से भरना चाहता है। ना सिर्फ जवानों को बल्कि बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, हर एक एज का जो इंसान है वो खुदा के कलाम के ऊपर जब गौर करता है तो खुदा उसे हिकमत से मामूर कर देता है, खुदा उसे हिकमत से भरना शुरू कर देता है। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा सुलेमान बादशाह जो है, इमसाल की किताब में, प्रोवर्ब की बुक में जो पहली वर्स है उसके अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई है और उसमें ये कहा गया है, इसराइल के बादशाह सुलेमान बिन दाऊद की मिसाल हिकमत और तरबियत हासिल करने और फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए, अक्लमंदी और सदाकत और अदल और रास्ती में तरबियत हासिल करने के लिए, सादा दिलों को होशियारी, जवान को इल्म और तमीज बख्शने के लिए, ताकि दना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की करे और फहीम आदमी दुरुस्त मशवरत तक पहुंचे। ये मकसद है इस बुक को लिखे जाने का। इसका मकसद ये है कि इंसान क्या करे जी, हिकमत हासिल करे, तरबियत हासिल करे, इल्म हासिल करे, मशवरत के लिए। ये खुदा का कलाम जो सुलेमान बादशाह ने खुदा के रूह की हदायत से लिखा और वो बहुत सारी बातें जो है उनको जाहिर करता है, लिखता है, ताकि नौजवान जो हैं जो और बच्चे जो हैं, बूढ़े जो हैं, वो इनसे सबक हासिल करें और दुरुस्त मशवरत तक पहुंचे। आज मैं आपके सामने बड़ी खूबसूरत जो है वो चींटी, जिसे हम कुछ नहीं समझते, एंट इंग्लिश में कहते हैं उसे, एंट,
اور چونٹی جو سب سے جو ہے وہ بالکل ایک انسیکٹ ہے, چھوٹا سا کیڑا ہے, بالکل جو ہے وہ کمزور مخلوق ہے, لیکن خدا نے اس کے اندر بہت زبردست قسم کی حکمت رکھی ہے. خدا نے اس کے اندر بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ اس کو جب بنایا ہے تو اس کے اندر عقل ہے, اس کو فہم دیا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا کام کر سکتی ہے. اور یہاں پر ہمیں سلیمان بادشاہ جو ہے وہ ان تمام لوگوں کو جو زندگی کے اندر سست روی سے چلتے ہیں, جو وقت کو غنیمت نہیں جانتے, جو وقت کی قدر نہیں کرتے, ٹائم کی ویلیو نہیں رکھتے, ان کو تربیت کرتے ہوئے یہ چند باتیں جو ہے وہ شیئر کرتا ہے. اور اگزامپل اس میں جو ہے وہ لیتا ہے چنٹی کی, کہ وہ کہتا ہے کہ اے کاہل, کاہل کا مطلب ہے جو انسان سست ہے, اپنے کام کرنے میں سست ہے, اپنی ذمہ داریوں میں سست ہے, اس کو وہ اس بات کے لیے آگاہ کرتا ہے. اور میں آپ کے سامنے یہ پڑھنا چاہتا ہوں, امثال 6 باب کے اندر اس کی 6 آیت سے لے کر 11ویں آیت میں خدا کے کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے, اے کاہل چنٹی کے پاس جا اور اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند بن, جو باوجود اس کا نہ کوئی سردار نہ ناظر نہ حاکم ہے, گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے. اے کاہل تو کب تک پڑا رہے گا, تو نیند سے کب جاگ اٹھے گا, تھوڑی سی نیند ایک اور تھپکی ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ, اسی طرح تیری مفلسی رہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی. میرے عزیزو, یہاں پر خدا کا بندہ سلیمان ان لوگوں کو مخاطب کرتا ہے جو لوگ اپنی ذمہ داریوں میں سست ہیں, جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے, جو لوگ اس بات کو اگنور کرتے ہیں, جو لوگ سست روی سے چلتے ہیں, جن کی رفتار سست ہے, جن کو کام کے وقت جب کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کرتے بلکہ وہ سوتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, وہ چیزوں کی وہ ویلیو وہ قدر نہیں جانتے, ان کو اس بات کے لیے وہ آگاہ کرتے ہوئے کہتا ہے اے کاہل چنٹی کے پاس جا. آپ سب جانتے ہیں کہ چنٹی بالکل چھوٹا سا, ایک بہت ہی چھوٹا سا انسیکٹ ہے, چھوٹا سا کیڑا ہے, بالکل سمال ہے, لیکن اس کے اندر یہ وزڈم خدا نے رکھی ہے, اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ خدا نے اسے دانش مندی بخشی ہے, اور وہ اپنے وقت کو غنیمت جانتی ہے, اپنے وقت کی قدر کرتی ہے, ویلیو کرتی ہے, اور ہارڈ ورکر کے طور پہ جو ہے وہ اس کو جانا جاتا ہے, سخت محنت کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں یہاں پر میں چند اس کی خوبیاں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, میں نے رائٹ ڈاؤن کی ہے چند اس کی کوالٹیز جو ہیں. نمبر 1, اس کی ولنگنس, کہ وہ ایگری ہے اپنے کام کرنے کے لیے, ہر وقت جو ہے وہ اس کا مائنڈ اس بات کے لیے ریڈی ہے کہ مجھے کام کرنا ہے, مجھے محنت کرنی ہے, مجھے ہارڈ ورک کرنا ہے, مجھے اپنے لیے خوراک جمع کرنی ہے, مجھے مہیا کرنی ہے اپنے لیے خوراک, اس لیے کیونکہ یہ ہارڈ ورکر ہے. خدا نے اس کے اندر ایک ایسی جو ہے وہ اس ایسی خوبی رکھی ہے, ایسی کوالٹی پیدا کی ہے کہ یہ اپنے وقت کو جو ہے وہ بڑے بہتر طور پہ یوٹیلائز کرتی ہے, بہت بہتر طور پہ استعمال کرتی ہے, اور اس کو اپنے لیے افیکٹو اور پروڈکٹیو بناتی ہے. یہ ہارڈ ورک کرتی ہے, سخت محنت کرتی ہے. آپ دیکھیں چاہے وہ گرمی ہو یا سردی ہو, یا اپنا کام کرتی ہے. رات دن آپ دیکھیں, رات میں بھی آپ کبھی اٹھ کے دیکھ لیں تو آپ کے گھر میں چنٹیوں کی لائن لگی ہوگی, اور وہ اپنا جو ہے وہ خوراک کو لے کے اپنے جو گھر ہے اس کا گھونسلہ جہاں پر وہ رہتی ہے, جہاں پر وہ جو سوراخ ہے جہاں پر اس نے اپنا جو ہے وہ اپنا گھر بنایا, وہاں پر وہ لے کے جاری ہوتی ہے. یہ کنٹینیوسلی عمل رہتا ہے, ہمیں نظر آتا ہے. میرے عزیزوں, ہم دیکھتے ہیں 8ویں آیت میں لکھا ہے گرمی کے موسم میں وہ اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش کو جمع کرتی ہے. گرمی آپ دیکھیں کہ سخت گرمی ہے, لیکن پھر بھی وہ ریسٹ نہیں کر رہی, بلکہ کیا کر رہی ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ کام کرنے کا وقت ہے, یہ خوراک جمع کرنے کا وقت ہے, یہ محنت کرنے کا وقت ہے, اور وہ محنت کر رہی ہے, اور وہ جا کے خوراک اپنے لیے جمع کر رہی ہے, وہ سخت محنت کر رہی ہے. گرمی ہے,
कुछ भी है, लेकिन वो फिर भी अपनी मेहनत को कंटिन्यू किए हुए हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज का नौजवान, आज का मसीही अपने आप को देखे कि कहां वो खड़ा है। क्या वो विलिंग है अपने हालात को बदलने के लिए? क्या वो विलिंग है कि वो सख्त मेहनत करे और मुआशरे में अपना मकाम बनाए, मुआशरे में अपना नाम बनाए? क्या वो मेहनत करने के लिए तैयार है? जो लोग खिदमत में है, क्या वो खुदा के लिए उसी तरह हार्ड वर्क कर रहे हैं? क्या वो मेहनत कर रहे हैं कि रूहों को जीत के खुदावंद की हजूरी में लाएं, या सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, या सिर्फ अपने जात तक की हद तक काम कर रहे हैं? मेरे अजीजों, यहां पर हमें ये इस लेसन को मिलता है कि सख्त मेहनत जो है वो क्या करती है, इंसान के लिए खुशहाली को ले आती है। सख्त मेहनत जो है वो क्या करती है, इंसान को आगे लेके जाती है। जब हम इमसाल का 10वां बाब 4 और 5वीं आयत पढ़े तो हमें वहां पे लिखा मिलता है कि जो ढीले हाथ से काम करता है, निकाले मेरे साथ एक और हवाला, आप खुदा के कलाम में से देख सकते हैं। 4 और 5वीं आयत में लिखा है, जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। जो हार्ड वर्कर है वो दौलतमंद बन जाता है, जो मेहनत करता है वो खुशहाल हो जाता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी हमारे दोस्त इस वक्त हमें देख रहे हैं, जितने बहन भाई हमें देख रहे हैं, खासतौर पे वो लोग जो काम के वक्त काम नहीं कर रहे, मैं उनको इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं, नसीहत करना चाहता हूं कि अपने हाथों को ढीले ना बनाएं, अपने घुटनों को सुस्त ना करें, बल्कि क्या करें, इस बात के लिए विलिंग हो जाएं। इस चुंटी की एग्जांपल लें कि किस तरह ये हार्ड वर्क करती है, ये हर वक्त एग्री रहती है, तैयार रहती है कि मुझे मेहनत करनी है। सॉरी टू से, उन नौजवानों के लिए बड़ा जो है वो दिल में दुख होता है जो मसीही कौम को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन गलियों में, चौराहों में खड़े होकर अपना वक्त गुजारते हैं और अपने वक्त को जाया कर देते हैं। वो उसकी वैल्यू नहीं करते, उस वक्त को जो है वो गनीमत नहीं जानते। कलाम में लिखा है, वक्त को गनीमत जानो, ये खुदा का गिफ्ट है आपके लिए। जितने बहन भाई सुन रहे हैं, मैं आप सबसे मुखातब हूं कि वक्त जो है, खुदा ने टाइम जो हमें दिया है, ये एक तोहफा है और ये एक खूबसूरत गिफ्ट है जो खुदा की तरफ से मिला है। मेरे अजीजों, अगर हम इसी तरह, कोई भी बहन भाई जो सुस्ती रवि से काम कर रहे हैं, अगर वो इसी तरह इसको जाया कर देगा तो वक्त दोबारा कभी पलट नहीं सकता। वक्त के लिए कहा जाता है टाइम इज अ मनी। यही वो वक्त है जो आपकी जिंदगी को बेहतर कर सकता है, आपके हालात को माली तौर पे चेंज कर सकता है। और टाइम के ताल्लुक से ये बात कही जाती है कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता है। तो आज नौजवान नस्ल, खासतौर पे नौजवान गलियों मोहल्लों में बैठते हैं और अपने वक्त को जाया कर देते हैं। इसलिए खुदा का कलाम ये कहता है कि जो गर्मी में जमा करता है वो दना बेटा है, पर वो बेटा जो द्रोह के वक्त सोता रहता है शर्म का बायस है। यानी जो फसल कटने के वक्त सोता है, जो फसल कटने के वक्त, क्योंकि अब ये वक्त है जब काम करने का वक्त है, अब ये वक्त है जब अपने लिए जमा करने का वक्त है। हम एक और चीज चुंटी की जिंदगी से देखते हैं कि वो क्या करती है, सेव करती है अपने लिए, कलेक्ट करती है अपने लिए, ताकि मुश्किल वक्त में उसके काम आ सके, ताकि उस वक्त उसके काम आ सके जब विंटर है, जब झाड़ा है, जब हर तरफ बारिश हो सकती है, जब फसल जो है वो उस तरह से पकी हुई नहीं मिल सकती। वो उन हालात के लिए, यानी मुश्किल हालात के लिए जमा करती है। मेरे अजीजों, वक्त हमेशा गुजर जाता है। आज खुदा ने तंदुरुस्ती और सेहत दी है, आज आप मेहनत करें, आज आप उठें, ताकि आपके आने वाले वक्त में आपकी रहनुमाई हो सके, ताकि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हम देखते हैं अक्सर कि लोग मेहनत नहीं करते, पैसा पहले जमा नहीं करते, लेकिन अपने अखराजात इतने बड़े, शादियां हों उधार, कर्ज लेते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी, ज्यादातर लोग कर्ज से डूबे हुए होते हैं। वो गैर कौमों से कर्ज लेते हैं और बाद में उनको उसका नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वो कर्ज पे नहीं कर सकते। जो वो ले लेते हैं वो अपनी बसात से बढ़ के ले लेते हैं, अब वो ये जानते नहीं कि हम कितना ले रहे, क्योंकि वो उसके मुताबिक ना तो हार्ड वर्क करते हैं, ना इस बात को जानते हैं। लेकिन क्या करते हैं, जो कुछ उनके पास इवन जो जमा होता है, चुंटी क्या करती है, बड़ी अतदाल पसंदी से चलती है।
जो कुछ वो जमा करती है वो सारा एक दिन खत्म नहीं कर लेती, वो सारी सैलरी एक ही महीने में खत्म नहीं करती, बल्कि क्या करती है, अपने लिए रखती है। ये सबक है उन लोगों के लिए जो हर महीने अपने लिए कुछ सेव नहीं करते। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि उनके एट द एंड ऑफ मंथ उनके पास कुछ नहीं होता और वो लोगों से मांग रहे होते हैं उधार। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें जिस्मानी तौर पे भी अक्लमंदी बख्शता है। हमें ये कहता है कि हमें हर काम को जो क्या करना है, बैलेंस तरीके से करना है। हमें डिसिप्लिन कायम करना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी काम की ज्यादती जो है वो अच्छी नहीं होती है। बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में कहते हैं खुदा मुहैया करेगा। मेरे अजीजों, खुदा ने आपको अकल बख्शी है, फहम बख्शा है। आप कलाम में से पढ़ सकते हैं, आप इस बात को जान सकते हैं कि हमें हर चीज जो है वो इस तरह से हमें बिल्कुल भी जाया नहीं कर देनी, बल्कि उसको सेव करके रखना ताकि मुश्किल वक्त में काम आ सके। ताकि मुश्किल वक्त, आज भी ऐसा नौजवान, अगर आप देख रहे हैं मुझे, नौजवान जितने भी खुदा के कलाम के ताल्लुक से, अब मैं रूहानी बात करने लगा हूं, खुदा के कलाम के ताल्लुक से आप देख लें कि वो खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, खुदा के कलाम को जखीरा नहीं कर रहे अपनी जिंदगी के अंदर। मेरे अजीजों, कल को जब शादी हो जाती है, जब फैमिली हो जाती है, तो उस वक्त शायद आपको इतना टाइम ना मिले कि आप उस वक्त उस तरह खुदा के साथ वक्त गुजार सके। लेकिन आज अगर आपके पास टाइम है तो खुदा के कलाम को पढ़िए, खुदा के साथ वक्त गुजारिए, अपना दिल लगाइए खुदा के साथ, फिर देखिए खुदा आपको किस तरह आगे बढ़ाता है। और ये कलाम आज जो आपके पास है, जब कलाम इस दुनिया से उठा लिया जाएगा तो आपके अंदर खुदा का कलाम मौजूद होगा। आपने जो जखीरा किया होगा वो उस वक्त के लिए, उस मुश्किल वक्त में आपकी रहनुमाई करेगा, आपके बच्चों की। आज जो कुछ आपके अंदर है वही आप अपने बच्चों में ट्रांसफर करेंगे। अगर खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में है, अगर खुदा से मोहब्बत आपकी जिंदगी के अंदर है, अगर पाकीज़गी का रूह आपकी जिंदगी के अंदर है, अगर मेहनत आपकी जिंदगी के अंदर है, हार्ड वर्क आपकी जिंदगी के अंदर है, वही चीजें आप अपने बच्चों में ट्रांसफर करेंगे। मेरे अजीजों, मैं उन लोगों के लिए कई दफा सोचता हूं जो कौम के बुजुर्ग हैं। मैंने पाकिस्तान में देखा है वो लोग गलियों में, मोहल्लों में बैठकर ताश खेलते हैं, जो उनका वक्त किसी और काम में बेहतर तौर पे सर्व हो सकता है, वो प्रोडक्टिवली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा के हजूर जाके अपने खानदान के लिए दुआएं कर सकते हैं, खुदा के हजूर अपनी कौम के लिए रो सकते हैं, क्राई कर सकते हैं कि खुदावंद मेरी कौम के हालात बदले। लेकिन क्या करते हैं, शर्टें उतार के गलियों में बैठकर ताश खेल रहे होते हैं, अपना जो कीमती टाइम है जो खुदा ने उनको दिया है वहां पर बैठ के। तो मेरे अजीजों, अगर किसी कौम के बुजुर्ग जिनको अक्लमंद समझा जाता है, जिनको सबसे ज्यादा अक्लमंद समझा जाता है, अगर वो इस तरह टाइम को जाया करते हैं तो बाकियों का आप खुद अंदाजा कर लें कि क्यों हमारी नौजवान नस्ल पीछे है, क्यों अपना वक्त जो है वो गलियों और मोहल्लों में गुजार देते हैं, क्यों सो सो के अपना वक्त गुजारते हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 2 बजे से पहले उठना पसंद नहीं करते, उनके पेरेंट्स गालियां देते हैं, उनको मतलब बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो नहीं काम करते। यानी दिन आधा गुजर चुका होता है और उस वक्त वो उठते हैं। आप इमेजिन करें कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है कि शागिर्द जो है वो क्या करता है। यसाया नबी में के सहीफा में लिखा है कि वो मुझे हर सुबह उठाता है और मेरा कान लगाता है ताकि मैं शागिर्द की तरह सुनूं। शागिर्द का काम है सुबह उठे, क्योंकि यही आपके लिए जरूरी है कि हर दिन का आगाज खुदा के नाम से किया जाए। हार्ड वर्क करने से पहले आप खुदा की हजूरी से होके जाएं, क्योंकि खुदा जो है वो आपकी राहों को हमवार कर देगा। मेरे अजीजों, ये हम देखते हैं कि ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि टाइम को किस तरह वो मैनेज करती हैं। चींटियां अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हैं। जो वक्त उनके काम का है उस वक्त वो काम करती हैं, उस वक्त वो सोती नहीं है, उस वक्त वो पार्टियों में नहीं जाती, उस वक्त वो यैशी नहीं करते। जो वक्त पढ़ने का, नौजवान नस्ल के लिए खास तौर पे जो लड़के लड़कियां बहनें भाई पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो वक्त स्टडी का है उस वक्त स्टडी कीजिए। उस वक्त यारों दोस्तों के साथ जो है वो पार्टियों में मत जाएं, यारों दोस्तों के साथ शादियों एंजॉय मत करें। आप जा सकते हैं जहां पे मतलब जरूरी है, लेकिन हर जगह पे जाना जरूरी नहीं है। आप इस टाइम को अपने लिए अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए। मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये है
کہ ٹائم کو ویلیو دیجیے, ٹائم کی قدر کیجیے. وائس کی کتاب جب ہم پڑھتے تو خدا نے ہر چیز کا ٹائم مقرر کیا ہے. رونے کا ایک ٹائم ہے, ہنسنے کا ایک ٹائم ہے, شادی بیاہ کرنے کا ایک ٹائم ہے. میرے عزیزو, ہر چیز کا ایک وقت ہے. اس لیے وقت کی قدر کیجیے, کیونکہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں چنٹی کیا کرتی ہے. موسم گرم ہے لیکن وہ وقت کو ضائع نہیں کر رہی, بلکہ اپنے گھر کے لیے محنت کر رہی, اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہی, خوراک کو جمع کر رہی ہے. اور یہی چیز اس کے اندر خدا نے کیا کی ہے, فٹ کی ہے. اور جب یہ چیز آپ کے اندر ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کی نسل میں جائے گی, آپ کے بچوں میں جائے گی, آپ کی نسلیں جو ہیں وہ سنور جائیں گی. آج ہم کیوں اتنا زیادہ اس بات پہ واویلا کرتے ہیں کہ پاکستانی قوم کرسچن جو ہے وہ اس کی حالت کیوں نہیں بدل رہی, کیوں نوجوان نسل جو ہے وہ اس طرح سے ترقی نہیں کر رہے, کیوں وہ ان کی نظر, ان کا کوئی ویژن نہیں ہے. بھائی دیکھیے ویژن اس کا دیکھیں, اس کو پتا ہے گرمی ہے تو میں نے کام کرنا ہے, سردی ہوگی جاڑا ہوگا تو ہو سکتا ہے میرے پاس ایسے حالات میسر نہ ہوں, لیکن مجھے ابھی اٹھنا ہے اور ابھی کام کرنا ہے. تو میرے عزیزو, جو موقع ملے, جو اپرچونٹی ملتی ہے, آپ کو اس کو ضائع مت کریں, کیونکہ اگر آپ اپرچونٹیز کھو دیں گے اپنی زندگی میں تو پھر آگے نہیں بڑھ سکیں گے. آپ اپنی اپرچونٹی لوز کریں گے تو آپ کی ترقی رک جائے گی. یہاں پر ہمیں یہ ساری چیزیں اس کی زندگی کے اندر نظر آتی ہیں. پھر یہ ہیلپر ہے بہت زیادہ. اگر ایک چنٹی اس کی خوراک بڑی ہے اور وہ اٹھا نہیں سکتی, ہیوی ہے, تو دوسری اس کے ساتھ مل کے اس کی ہیلپ کرتی ہے تاکہ وہ کیا کرے, اس کے جو ہے اس کے گھر تک لے کے جا سکے. تو ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے, وہ یونٹی میں رہتی ہیں, وہ کمیونٹی میں رہتی ہیں, وہ ڈسپلن مینٹین کرتی ہیں. دیکھیں وہ لائن بنا کر چلتی, باوجود اس کے کہ ان کا کوئی حاکم نہیں, ان کے اوپر کوئی لیڈر نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی حکم چلانے والا نہیں ہے, کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا. اور ہمارے ہاں کیا ہے, جب تک ڈنڈے والا سر پہ کھڑا نہ ہو کوئی انسان کام نہیں کرنا چاہتا, کوئی انسان اس کام کو آگے لے کے جانا نہیں چاہتا. یہاں تک کہ لوگ خدا کی حضوری میں اس وقت آتے جب خدا ان کو ایک دفعہ جھٹکا دیتا ہے, جب خدا کوئی ان کے اوپر آزمائش لاتا ہے, پھر وہ بھاگتے ہیں کہ چلو اب دعا کروانی ہے, چلو اب کلام پڑھ لے, چلو اب یہ کر لے. اس وقت وہ ہلتے ہیں. یہ کس بات کو ظاہر کرتا ہے؟ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ سست ہیں. اس بات کو, سوری ٹو سے, کہ کرسچن واقعی ہی سست ہیں. یہ ایک ہی بک انہیں ملی ہے پڑھنے کے لیے اور اس کو بھی نہیں پڑھتے. بہت سارے لوگ ہیں ان کی عمر 60 سال ہوگی, بائبل ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی ہوگی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سست روی سے نہ چلیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے, سست گھٹنوں سے خدا کو نفرت ہے. میرے عزیزو, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی قوم ترقی کرے تو اپنے گھٹنوں کو مضبوط کیجیے, ان گھٹنوں پہ جائیے اور دعا کیجیے اپنے گھر کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندان بیماریوں سے آزاد ہو, آپ کا خاندان ابلیس کے ہاتھ سے آزاد ہو, تو اپنے گھٹنوں پہ جائیے, محنت کیجیے. بغیر محنت کیے آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے. ہمیں اس چھوٹے سے انسیکٹ کی ایگزامپل دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی اس کی روشوں کو دیکھو, یہ کس طرح کام کرتی ہے, کون سی خوبیاں اس کے اندر خدا نے رکھی ہیں. یہ اوبیڈینس کرتی ہے. یاد رکھیں فرما برداری اس کے اندر موجود ہے. دیکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ خود بخود چل رہی ہے. اور پھر یہ سیلف موٹیویٹڈ ہے. سیلف موٹیویٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے, اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی چنٹی آج تجھے ادھر جانا ہے, کل تجھے یہاں جانا ہے, کل تجھے یہ کرنا ہے. No, she knows that how I have to work. She understands that. جب ہم امثال کے 30ویں باب کی 25ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ یہ وہ مخلوق ہے جس کا کوئی بھی سردار نہیں. 30ویں باب کی 25ویں آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. چنٹیاں کمزور مخلوق ہیں تو بھی گرمی میں اپنے لیے خوراک جمع کرتی ہیں. اور یہاں پر 8ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ 7ویں آیت میں, باوجود اس کے کہ ان کا کوئی بھی سردار یا ناظم یا حاکم نہیں ہے, ان کو خود پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. گرمی میں خوراک جمع کرنی ہے, کس وقت جانا ہے, کس وقت اٹھنا ہے, کس وقت جاگنا ہے, یہ سارا کام ان کا ہے. ہمارے ہاں ماں باپ زور لگا لیتے, بیٹا اٹھ جا, بیٹی اٹھ جا, کوئی بھی نہیں اٹھتا, کوئی سنتا ہی نہیں بات. میرے عزیزو, سیلف موٹیویٹڈ ہو جائیے, جس کو کہتے ہیں نا پرو ایکٹیو. پرو ایکٹیو کا مطلب ہے آپ کو پتا ہو پہلے سے کہ مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ پرو ایکٹیو ہو جائیں گے تو میرے عزیزو آپ ترقی کر پائیں گے. بہن بھائی جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں, اگر آپ پرو ایکٹیو ہیں, پرو لرنر ہیں, آپ دیکھیں اپنی زندگی کے اندر کیسے خدا آپ کو بحالی کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ اگر ہارڈ ورک کرنا جانتے ہیں, محنت کرنا جانتے ہیں,
تو آپ زندگی میں شرمندہ نہیں ہوں گے, کیونکہ خدا محنتی کے ہاتھوں, وہ کہتا ہے میں تیری ہاتھ کی کمائی میں برکت دوں گا, تیری محنت جو تو کرے گا میں اس میں برکت ڈالوں گا. میرے عزیزو, اس بات کو یاد رکھے کہ محنت کے بغیر کچھ بھی ہمیں حاصل نہیں ہونے والا. اس لیے آپ سیلف موٹیویٹڈ ہو جائیں کہ ہمیں خود کرنا ہے, ہمیں اپنی حالت بدلنی, اپنی قوم کی حالت بدلنی, اپنے لوگوں کی حالت بدلنی. خادموں کے لیے بھی کہنا چاہوں گا, آپ کو اپنے لوگوں کے لیے رخنوں میں کھڑے ہونا, آپ کو ان کے لیے دعا کرنی ہے, آپ کو اپنی قوم کے لیے آنسو بہانے ہیں, آپ کو اپنی قوم کے لیے جو لوگ نجات یافتہ نہیں ہیں, جو لوگ ابھی تک خدا سے دور ہیں, ان کے لیے کھڑے ہونا ہے, روحوں کو مانگنا ہے. یہ بوجھ آپ کو رکھنا ہے, یہ محنت ہے. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے جاگتے رہو. لکھا کہ خدا وہ مالک کتنا خوش ہوتا ہے جس کا جب وہ آئے تو اپنے نوکر کو جاگتا ہوا پائے, سویا ہوا نہ پائے, بلکہ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ he is working actively, وہ ایکٹیو ہے, وہ اپنے کام کے اوپر جاں فشانی کے ساتھ محنت کر رہا ہے, اس لیے وہ جاگ رہا ہے. بتانا چاہوں گا کہ چینٹیاں جو ہیں وہ بہت زبردست قسم کی ڈیسیژن میکر ہوتی ہیں, فیصلہ لینے والی بہت زبردست ہوتی ہیں. وہ جانتی ہیں کس ٹائم اٹھوں گی, کس ٹائم پہ کام شروع کروں گی, کب واپس آؤں گی, کب مجھے بریک لینا ہے, کب مجھے سٹارٹ کرنا ہے. یہ ان کا ڈیسیژن ہوتا ہے. تو میرے عزیزو, قوم کی حالت تب بدلتی ہے اگر صحیح ڈیسیژن لیے جائیں, گھر کی حالت تب بدلتی ہے اگر صحیح ڈیسیژن لیے جائیں, آپ کی روحانی حالت تب بدلے گی اگر آپ صحیح ڈیسیژن لیں گے, کیونکہ ڈیسیژن آپ کے جو ہیں وہ آپ کی زندگی کو بدلتے ہیں, آپ کی چوائسز آپ کی زندگی کو بدلتے ہیں. ہم اپنی زندگی کا کنٹرول ابلیس کے ہاتھوں اس وقت دیتے ہیں جب ہمارے ڈیسیژن رانگ ہو جاتے ہیں, جب ہماری چوائسز رانگ ہوتی ہیں, ہم ابلیس کو موقع دے دیتے ہیں. اور کلام ہمیں بار بار کہتا ہے ابلیس کو موقع نہ دو, لیکن ہم اپنے ڈیسیژنز کے ساتھ اس کو موقع دے دیتے ہیں. ہم اس کو کنٹرول دیتے ہیں اپنے بدن کا, اپنی سوچوں کے, اپنے منہ کے ذریعے, اپنے کاموں کے ذریعے, اپنے ریلیشن شپ کے ذریعے. ایسے لوگوں کے ساتھ رشتے جوڑ لیتے ہیں, خاص طور پہ نوجوان نسل کے لیے, ان بہنوں کے لیے کہنا چاہوں گا جو غیر قوموں میں اپنے رشتے جوڑ لیتی ہیں. آپ کے ڈیسیژن آپ کی زندگی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں, کیونکہ آپ کے ڈیسیژن جو ہیں وہ آپ کو زمین سے آسمان پہ لے جاتے ہیں. ایک صحیح ڈیسیژن آپ کا آپ کی زندگی کو سنوار سکتا ہے. جن لوگوں نے آج تک خدا کو اپنا آپ نہیں دیا, میں کہوں گا کہ آج ایک ڈیسیژن بنائیں کہ اپنا آپ یسوع کو دے دیں, یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں, اور آپ کی زندگی, آپ کی ابدیت جو ہے, آپ کا جو آپ اٹرنل لائف جو ہے, اس کو آپ اپنی سنوار لیں گے آج, اگر آپ ایک ڈیسیژن صحیح لے لیتے ہیں. میرے عزیزو, اکثر ہمارے گھروں میں ڈیسیژن غلط ہوتے ہیں, اور ڈیسیژن غلط ہونے کی وجہ سے اگر شادی ہے تو اتنا قرضہ لے لینا جس کو کئی سال تک نہیں اتار سکتے, بڑا دکھانے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے ہماری پہلی شادی ہے, یہ ہے وہ ہے, اس طرح کے ایکسکیوز دے کر اتنا زیادہ لون لے لیتے ہیں, اتنا قرضہ لے لیتے ہیں کہ بعد میں پے نہیں کر سکتے, بعد میں پریشانیاں بن جاتی. ڈیسیژنز, آپ کے ڈیسیژن ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کیسی زندگی گزاریں, آپ کا فیوچر کیسا ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے ڈیسیژنز کو دیکھیں میرے عزیزو. ابلیس تب تک آپ کی پاور آپ کے اوپر کنٹرول نہیں لے گا جب تک آپ کے ڈیسیژن جو ہیں وہ نہ ہو. اس لیے میں تمام بہن بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ واچ آؤٹ کہ آپ کیا ڈیسیژن لے رہے ہیں. آپ سوچیں آپ کی کیا چوائس ہے, آپ ڈیسائیڈ کرتے. نشہ کرنے کے لیے آپ ڈیسائیڈ کرتے کہ مجھے اس کی, میری چوائس ہے کہ میں نے سگریٹ پینے ہیں, میری چوائس ہے میں نے شراب پینی ہے, میری چوائس ہے میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے ہیں جن کی روشیں درست نہیں ہیں. کلام میں لکھا ہے فرسٹ زبور میں, مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پہ نہیں چلتا. That's your decision کہ آپ کس کی صلاح پہ چل رہے ہیں, کس سے مشورہ لے رہے ہیں, کس گیدرنگ میں بیٹھ رہے ہیں. وہ آپ کی زندگی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کے ڈیسیژن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا آپ کر رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزو, اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں رکھیں, اپنے آپ کو کلام سے بھریں. آج وقت ہے آپ کے پاس, خدا نے آپ کو شارٹ ٹائم دیا ہے, اور ٹائم خدا کا گفٹ ہے.
इसको जाया मत करे, इसको इन बातों को इग्नोर मत करें और इनको अपनी जिंदगी के अंदर अमल पैरा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली के हालात बदले, आपकी अपनी जिंदगी बदले, आपकी कम्युनिटी डेवलप करे, आपके लोग आगे बढ़े, ये तभी हो पाएगा जब आप अपने सही फैसले करेंगे। ये तभी होगा जब आप हार्ड वर्कर बनेंगे, जब आप मेहनत करेंगे। मैं देखता हूं कुछ कौमें ऐसी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जाके मोहल्लों में काम कर रहे, अगर वो पढ़े लिखे नहीं तो मैं उनको देखता हूं कि वो कई जगह पे काम कर रहे होते। तो मेरे अजीजों, हमारे क्रिश्चियन बहन भाई क्यों नहीं काम कर सकते? इस मुल्क में जिसमें हम रहते हैं, हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियां क्या करती हैं, जैसे साथ साथ वो स्टडी कर रहे हैं, साथ साथ पार्ट टाइम काम भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा रवाज बिल्कुल नहीं है। बच्चे मेहनत नहीं करते, इवन के बच्चों के बच्चे हो जाते हैं तो माँ बाप उनको पाल रहे होते हैं, माँ बाप उनका खर्चा उठा रहे होते हैं। माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं लेकिन फिर भी उनका खर्चा माँ बाप उठा रहे हैं। क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं लोग? क्योंकि फहम नहीं है, क्योंकि विजडम नहीं है। और आज हमें नसीहत की जाती है यहां से कि चुंटी के पास जा, उसकी रवशों को देख और अक्लमंद बन। नसीहत ले इससे। खुदा का बंदा सुलेमान बादशाह, जिसे हिकमत का बादशाह भी कहा जाता है, वो ये बात कहता है कि चुंटी के पास जाओ। वो कहता है इनसे नसीहत लो, ये किस तरह काम करती हैं, किस तरह मेहनत करती हैं, किस तरह अपने वक्त की वैल्यू देती हैं, किस तरह अपने टाइम को जो है वो खूबसूरती से यूटिलाइज करती हैं, प्रोडक्टिव वे में, अफेक्टिव वे में। तभी आप मेरे अजीजों कामयाब हो पाएंगे, रूहानी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी। अगर आप काम को मेहनत नहीं करना जानते तो मेहनत जो है उसके बगैर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। सुस्त आदमी जो है वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता। जो सुस्त रवि से चलता है वो हमेशा पीछे रह जाता है, दूसरे आगे निकल जाते हैं, लेकिन जो सुस्त है वो पीछे रह जाएगा। ये चंद बातें जो आज हमने सीखी हैं मेरे अजीजों, मेरा ईमान है कि आपकी जिंदगी के लिए बाइस से बरकत होंगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें यही हुक्म देता है कि जागते रहो। मुकाशफा के 16वें बाब के अंदर उसकी 15वीं आयत है, मैं पढ़ना चाहता हूं आप सबके लिए। ये यीशु मसीह का मुकाशफा है जिसमें ये बात लिखी गई और कहा गया, देखो मैं चोर की तरह आता हूं, मुबारक है वो जो जागता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुबारक है वो जो जागता है। इसका मतलब ये है कि जो अलर्ट है, जो एक्टिव है, जो काम कर रहा है, वो इंसान मुबारक है। लेकिन जो सोया हुआ है, लेकिन जो इग्नोरेंस में है, जो इन बातों को इग्नोर कर रहा है, जो मेहनत नहीं कर रहा, वो इंसान मुबारक नहीं है। मुबारक वो है जो जाग रहा है, मुबारक वो है जो एक्टिव है, मुबारक वो है जो हार्ड वर्क कर रहा है, क्योंकि खुदावंद आपके हाथों के कामों में बरकत देगा। खुदावंद आपकी जिंदगी को बरकत बनाएगा। कई दफा पूछते हैं कि भाई जी क्या काम करते हैं? जी मेरा बड़ा भाई जो है वो सऊदी अरब में है, मेरी बड़ी बाजी जो है वो नर्स है, मेरा फलाना जो है वो अमेरिका में है। यानी एक्चुअली वो क्या कर रहे होते हैं? उस सवाल से भाग रहे होते हैं, उस बात को इग्नोर कर रहे होते हैं कि आपकी जिंदगी कहां पर खड़ी है। आप अपने बारे में बताइए कि आपकी जिंदगी में क्या है। मेरे अजीजों, किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय आप अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करें। आपके अंदर जो है अपनी सेल्फ जो है वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मांगने वाले ना बने, बल्कि खुदावंद कहता है देने वाले बने, दिया करें, देने वाले बने। देने वाले मुबारक हैं, खुदावंद ने कहा है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने आप को चेक कर लें, देख लें। नौजवान खास तौर पे देखें कि आपको किस तरह अपनी जिंदगी को गुजारना है। और मैं चाहूंगा जितने बहन भाई आज सुन रहे हैं, छोटी सी एडवाइस है, वो ये है कि इमसाल की किताब जरूर पढ़ें और इसके ऊपर अमल भी करें, ताकि आपकी जिंदगी बरकत हो सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद की मस्सा, खुदावंद की हजूरी हमेशा आपके साथ रहे। ब्रदर इमरान से दरख्वास्त करूंगा दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।